رازوں سے بھری ایک عام سی زندگی کبھی کبھی سب سے بڑی حقیقت وہ ہوتی ہے جسے برسوں تک ہم حقیقت ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے شہر کے کنارے پھولوں سے بھری ایک وادی میں ایک لڑکی ریا اپنی ماں آئمہ کے ساتھ خاموش پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹی دوسروں کی نظر میں عام انسان تھے، لیکن اصل میں ان کا تعلق ایک خفیہ جادوئی دنیا سے تھا۔ آئمہ نے برسوں پہلے جادوئی دنیا کو خیرباد کہہ دیا تھا جب اس کے شوہر کی موت کی خبر ملی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے انسانی دنیا میں پناہ لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جادوئی دنیا میں چھپے ہوئے خطرات ایک دن اسے بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ریا ایک خوبصورت معصوم سی لڑکی تھی جو اکثر انجان خوابوں میں کھو جاتی تھی۔ اس کے خواب عجیب ہوتے، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، جیسے اس کے اندر کوئی پوشیدہ طاقت ہو۔ لیکن جب بھی وہ اپنی ماں سے ان خوابوں اپنے اندر کے احساسات کے بارے میں بات کرتی، آئمہ بات بدل دیتی۔ ایک دن ریا اپنی ماں کے ساتھ باغیچے میں پودے لگا رہی تھی کہ اچانک ایک لمبا سا شخص ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں، بال چاندی جیسے چمک رہے تھے۔ آئمہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آج تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئمہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں ریا کے لیے آیا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اصل پہچان جانے اور جادو سیکھے۔ اس شخص نے جواب دیا۔ ریا حیران رہ گئی، امی، یہ کون ہے؟ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئمہ نے ریا کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں بیٹی، یہ صرف ایک پرانا جاننے والا ہے۔ لیکن وہ شخص آگے بڑھا، ریا، کیا تمہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ تم ایک پری ہو؟ تمہارے اندر جادو ہے۔ ریا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ جادو؟ پری؟ انکشاف اور انکار۔ کبھی کبھی سچائی ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین کرنے میں وقت لگتا ہے۔ آئمہ چیخ پڑی، نہیں، میں یہ سب پیچھے چھوڑ چکی ہوں۔ ریا یہاں محفوظ ہے، میں اسے جادوئی دنیا میں نہیں بھیجوں گی۔ اس شخص نے گہری سانس لی۔ آئمہ، خطرہ صرف جادوئی دنیا میں نہیں، یہاں بھی ہے۔ ریا کی طاقتیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر وہ انہیں قابو میں نہ لائے تو خود اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ریا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں واقعی ایک پری ہوں؟ آئمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں بیٹی، یہ سچ ہے، لیکن میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ ریا کئی دنوں تک سوچتی رہی۔ دل میں ایک جنگ جاری تھی، ایک طرف ماں کا خوف، دوسری طرف اپنا سچ جاننے کی خواہش۔ آخر کار ایک رات وہ آئمہ کے پاس گئی۔ امی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ آئمہ نے طویل خاموشی کے بعد آہ بھری، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن وعدہ کرو، کبھی خود پر غرور نہ کرو، ہمیشہ عاجزی سے کام لینا۔ اس شخص نے خود کو عذر بتایا اور کہا، چلو، میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس لے جاتا ہوں۔ جادوئی دنیا میں پہلا قدم جب تم اپنی سچائی قبول کرتے ہو تو پوری کائنات تمہارے لیے بدل جاتی ہے۔ عذر ریا کو لے کر جادوئی دنیا پہنچا۔ یہ جگہ حیران کن تھی۔ ہر چیز روشنی میں نہائی ہوئی، درخت بولتے، پرندے گنگناتے، اور فضا میں جادو مہکتا تھا۔ جب وہ جادوئی اسکول پہنچی تو ریا کی پشت پر سنہری پیر نکل آئے۔ وہ خود حیران تھی، لیکن اندر سے ایک سکون کا احساس تھا، جیسے وہ اپنی دنیا میں واپس آ گئی ہو۔ اسکول کی پرنسپل ماسٹر وینا ایک خوبصورت پری تھی۔ وہ سب بچوں سے محبت سے بات کرتی اور کہا، یہ اسکول تمہیں نہ صرف جادو سکھائے گا بلکہ تمہاری اصل پہچان بھی دے گا۔ ریا کو اسکول میں جلدی دل لگ گیا۔ سب کچھ نیا تھا، لیکن عجیب طور پر مانوس بھی۔ وہ تیزی سے جادو سیکھ رہی تھی، ہوا میں اڑنا، روشنی پیدا کرنا، پودوں سے بات کرنا، اور تب ریا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہے۔ پراسرار تصویر۔ جواب کبھی کبھار کتابوں میں نہیں، تصویروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ ایک دن جب ریا اسکول کی لائبریری میں تھی، اسے ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب کی جلد پر سنہری جادو سے نقش و نگار بنے تھے۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی، ایک تصویر پر نظر پڑی۔ تصویر میں 5 جادوئی انسان تھے۔ ان میں سے ایک چہرہ ریا کو حیران کر گیا۔
वो शक्ल में बिल्कुल इसके जैसा था। नीचे लिखा था, ये हैरी है, एक अजीम जादूगर जो पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। रिया का दिल धड़कने लगा, क्या ये मेरे वालिद हैं? लेकिन वो तो मर चुके हैं। क्या वो जिंदा हैं? वो पूरी रात सो ना सकी। उसने फैसला कर लिया कि वो आज़र से ये सवाल करेगी। शक और साजिश की पहली झलक है। हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है जिसे वक्त ही बेनकाब करता है। अगली सुबह रिया ने आज़र को तस्वीर दिखाई। आज़र ने तस्वीर देखी और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया कि ये तुम्हारे वालिद हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ठीक कहती थी, वो मर चुके हैं। रिया ने चौंक कर कहा, लेकिन किताब में लिखा है कि वो गायब हुए थे, मुर्दा नहीं। आज़र ने गहरी नजरों से इसे देखा। कभी कभी गायब होना और मर जाना एक ही बात होती है। रिया के दिल में शक बैठ गया। वो जानती थी कि आज़र कुछ छुपा रहा है। छुपाए गए राज अक्सर चीख चीख कर सच बोलते हैं। रिया को आज़र की खामोशी और उसका अंदाज कुछ अजीब लगा, जैसे वो कुछ जानता हो मगर बता ना रहा हो। इस रात रिया बहुत बेचैन थी। इसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरे वालिद जिंदा हैं? अगले दिन वो स्कूल में खामोश रही। उसने आज़र और मास्टर वीना को एक साथ बात करते देखा। दोनों किसी सुनसान कोने में सरगोशियां कर रहे थे। रिया को शक हुआ। उसने धीरे से उनके पीछे जाकर दरवाजे के पीछे छपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। आज़र कह रहा था, हैरी अब बहुत कमजोर हो चुका है, हम रिया की ताकतें भी जल्द हासिल कर लेंगे। वीना ने मुस्कुरा कर कहा, फिर पूरे परियों की दुनिया पर हमारा राज होगा। रिया की सांस रुक गई। क्या ये लोग मेरे वालिद के बारे में बात कर रहे हैं? और क्या ये मुझे धोखा दे रहे हैं? धोखा जिस पर यकीन था। सबसे गहरा जख्म वो होता है जो एतबार को तोड़ देता है। रिया की दुनिया पल में बदल गई। आज़र, वो शख्स जिसने उसे यहां लाया, जिसे वो अपना मोहसिन समझती थी, वही इसके पीछे साजिश कर रहा था। इस रात रिया ने सुकून से सोने का ढोंग किया, मगर जैसे ही रात गहरी हुई, वो चुपके से बिस्तर से निकली और स्कूल के निचले हिस्से की तरफ बढ़ गई, जहां इसने आज़र और वीना को जाते देखा था। एक खुफिया सीढ़ी नीचे जाती थी, जहां तारीकी और जादू का इम्तिजाज था। दीवारों पर जादुई निशान थे और बहुत से कैदी जंजीरों में बंद थे। रिया की नजरें एक कैदी पर जिम गईं। वो शख्स तस्वीर वाले हैरी जैसा ही था। शायद वही था। कैदखाने का इंकिशाफ। कभी कभी सच्चाई अंधेरी जगहों में बंद होती है, इंतजार करती है किसी दिए के जलने का। कैदी की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही रिया करीब गई, इसने आहिस्ता से आंखें खोल। रिया की आंखों से आंखें मिलीं और एक जज्बाती कैफियत ने दोनों को घेर लिया। अब्बा! रिया की आवाज कांप रही थी। कैदी ने धीरे से कहा, रिया, मेरी बेटी। रिया के आंसू बहने लगे। ये वही शख्स था, इसका वालिद हैरी। वो जिंदा था, मगर जंजीरों में कैद, कमजोर और जुल्म का शिकार। इसी लम्हे वीना और आज़र वहां आ गए। भरोसे का टूटना वो सच जब खिलता है तो वो सिर्फ राज नहीं, रिश्ते भी तोड़ देता है। वीना ने कहा, तुमने बहुत जल्दी राज जान लिया बच्ची, अब तुम भी कैद में रहोगी। आज़र ने रिया को घूरा, तुम मुझ पर भरोसा करती थी, है ना? रिया ने गुस्से और दुख से कहा, मैं तुम्हें अपना रहनुमा समझती थी, मगर तुम तो गद्दार निकले। वीना ने जादुई छड़ी घुमाई और एक तेज नीली रोशनी रिया की तरफ बढ़ाई, लेकिन ऐन वक्त पर रिया के हाथों से सुनहरी रोशनी निकली जो नीली रोशनी को रोक गए। आज़र चौंका, ये कैसे हो सकता है? मोहब्बत की ताकत। मोहब्बत से निकली ताकत हर साजिश को जला सकती है। रिया की रोशनी पूरे कैदखाने में फैल गई। जादुई जंजीरें पिघलने लगे, कैदी चीखने लगे, मगर खुशी से कि वो आजाद हो रहे थे। रिया ने चीख कर कहा, मेरी ताकत लालच से नहीं, मोहब्बत से आती है। हैरी की जंजीर भी टूट गए। वो लड़खड़ाता हुआ रिया के पास आया और कहा, मेरी बेटी, तुमने वो किया जो मैं बरसों में ना कर सका। अगर अब भी चाहते हैं ऐसी ही जादुई, जज्बाती और सबक आमोज कहानियां तो का चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर ख्वाब यहाँ हकीकत बनता है। वीना और आज़र अपनी शिकस्त देखकर गायब हो गए, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नई जंग की तैयारी। वो सच्चाई को छुपाया जा सकता है, दबाया नहीं।
वो आखिरकार बगावत बनकर निकलती है। कैदियों की आज़ादी के बाद रिया ने अपने वालिद हैरी को सहारा दिया और बाकी कैदियों को बाहर निकलने में मदद दी। स्कूल की ज़ेर ज़मीन तहखाना अब एक मैदान जंग में बदलने वाला था। हैरी ने रिया से कहा, यह सिर्फ इब्तिदा है बेटी। वीना और आज़र की ताकत बहुत पुरानी और गहरी है, हमें तैयारी करनी होगी। रिया ने हामी भरी। अब वो सिर्फ एक परी नहीं, एक मुहाफिज बन चुकी थी। कभी सच्चाई इतनी तल्ख होती है कि उसे जानने के बाद हम वही इंसान नहीं रहते। रिया अपने वालिद के साथ वापस स्कूल के एक खुफिया कमरे में पहुंची। वहां एक पुरानी शीशे की गेंद में माजी के मनाजिर देखे जा सकते थे। गेंद में इसने देखा कि कैसे आज़र और वीना ने मिलकर हैरी को धोखा दिया और इसे कैद कर लिया। वीना ने मोहब्बत का दिखावा किया, जबकि आज़र, हैरी का करीबी दोस्त, गद्दारी का चेहरा था। रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं कैसे अंधी रही। शक का बीज, धोखा वो जहर है जो रफ्ता रफ्ता यकीन को मार देता है। स्कूल में अब भी कुछ असातिज़ा और तलबा आज़र और वीना के वफादार थे। रिया और हैरी को मोहतात रहना था कि वो किस पर एतमाद करें। रिया ने चंद दोस्तों को एतमाद में लिया जिन पर उसे मुकम्मल भरोसा था। इला, एक निडर परी, और नूर, जो जादुई पौधों का माहिर था। हमें साजिश के सबूत इकट्ठे करने होंगे, रिया ने कहा, और उन सब को दिखाना होगा कि वीना कौन है। खुफिया मंसूबा बदी की हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए अक्ल, जादू और हिम्मत तीनों चाहिए होते हैं। रिया, हैरी, इला और नूर ने एक खुफिया मंसूबा तैयार किया। नूर ने स्कूल के अंदर ऐसे पौधे उगाए जो सच बोलने पर मजबूर कर देते थे। रिया ने लाइब्रेरी में पुराने जादुई कानून निकाले। अगर स्कूल का प्रिंसिपल धोखा दे तो पूरे स्कूल की ताकत इसे मुस्तरद कर सकती है। हमें बस सच सबके सामने लाना है, हैरी ने कहा। फिर खुद स्कूल फैसला करेगा। पुरानी दोस्तियों का इम्तिहान। असल दोस्त वही होता है जो सच के वक्त साथ खड़ा हो। रिया ने अपनी पुरानी दोस्त फायजा से राब्ता किया। फायजा अब वीना की करीबी हो चुकी थी, लेकिन रिया जानती थी कि वो दिल की अच्छी है। फायजा, तुम मुझ पर भरोसा करती हो? रिया ने पूछा। फायजा ने कुछ देर सोचा, फिर सर हिला दिया। हाँ, हमेशा किया। रिया ने इसे सारी बात बताई। फायजा, सच बोलने वाले पौधे जब झूठ बहुत ज्यादा हो जाए तो सच को उगाना पड़ता है। नूर ने अपने जादुई पौधे तैयार कर लिए थे। ये फूल जब किसी की मौजूदगी में खुलते तो वो शख्स झूठ नहीं बोल सकता था। रिया ने स्कूल में एक खास तकरीब रखी। असातिज़ा के एजाज की रात सब वहां मौजूद थे। वीना और आज़र भी। फूलों को हाल के चारों तरफ रखा गया। जैसे ही तकरीब शुरू हुई, रिया ने बोलना शुरू किया। सबके सामने सच। जब सच्चाई ज़बान से नहीं निकलती, फितरत इसे चलाकर बोलती है। रिया ने हाज़रीन से कहा, आज हम सच्चाई का जश्न मनाने यहां आए हैं। आइए, हर कोई बताए, स्कूल का असल मकसद क्या है। जैसे ही आज़र बोलने लगा, फूल लरजने लगे। नूर ने सरगोशी की, वो झूठ बोल रहा है। जब वीना ने बोलना शुरू किया, पौधों की रोशनी मध्यम होने लगी। फिर रिया ने चुपचाप शीशे की गेंद सबके सामने रख दी, जिसमें हैरी की कैद और साजिशों के मनाजिर दिखाई देने लगे। सब तलबा हैरान रह गए। बगावत की चिंगारी। जब सच जाहिर होता है तो लोग जाग उठते हैं। पूरी महफिल में खामोशी छा गई। कुछ असातिज़ा उठ खड़े हुए। ये क्या है? क्या ये सच है? हेड मैजिक काउंसिल के नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे और उन्होंने फौरन नोटिस लिया। हमें तहकीकात करनी होंगी, वीना ने गुस्से से कहा। यह सब एक बच्ची की चाल है। लेकिन सबकी नजरें अब वीना और आज़र पर थीं और खामोशी एक तूफान का पेश खैमा बन चुकी थी। मास्टर वीना का गुस्सा। जब ताकत का नशा टूटता है तो गुरूर तेजी से वहशत में बदल जाता है। वीना ने जादुई छड़ी घुमाई और सबको मारने के लिए तैयार हो गई। अगर तुम सब मेरे खिलाफ हो तो तुम सब दुश्मन हो, रिया ने आमने सामने खड़े होकर कहा। नहीं वीना, तुम्हारे सामने अब एक बेटी खड़ी है जिसने सच जान लिया। रिया की रोशनी ने वीना के जादू को रोका। एक बार फिर मोहब्बत की ताकत ने लालच और बदी को शिकस्त दी। मुहाफिज बनने की इब्तिदा असल ताकत वो नहीं जो तुम्हारे हाथों में हो, बल्कि वो है जो दिल से निकलती है। रिया ने स्कूल के बच्चों को एक जगह जमा किया। आज से हम सब खुद अपने मुहाफिज हैं। हम सच्चाई,
दोस्ती और इंसाफ के लिए जीते हैं। हैरी को स्कूल के बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। आज़र और वीना को कैद कर दिया गया ताकि उन पर मुकम्मल तहकीक हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। रिया अब सिर्फ एक परी नहीं बल्कि एक मिसाल थी कि झूठ और फरेब के दरमियान भी सच का चिराग जलाया जा सकता है। एक नई शुरुआत, जब पुराना सब कुछ टूट जाए तब ही नई दुनिया बनने लगती है। वीना और आज़र को कैद में डालने के बाद स्कूल में एक नया दौर शुरू हुआ। खौफ की जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। तलबा में नया जोश और एक नए लीडर की तलाश शुरू हो गई थी। सबकी नजरें अब रिया पर थीं। हैरी ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम उम्मीद हो। रिया ने कहा, अगर सब चाहें तो मैं अपनी खिदमत पेश करती हूं, मगर सिर्फ एक लीडर नहीं, एक साथी बनकर। एतमाद का इम्तिहान जो रोशनी की राह चुनते हैं उनका साया भी परखा जाता है। अब जब रिया स्कूल की निगहबान बन गई तो चंद तलबा को शक था, क्या वो इतनी कम उम्र में स्कूल संभाल सकती है। कुछ बड़ों ने सरगोशियां की। फायजा, इला और नूर उसके साथ खड़े रहे, मगर रिया जानती थी कि एतमाद हासिल करना आसान नहीं। उसने सबसे पहले स्कूल के दर व दीवार से जुल्म के निशानात मिटाना शुरू किए। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल इस्लाह के लिए किया, न कि हुक्मरानी के लिए। कैद के साए, बुराई कभी मुकम्मल खत्म नहीं होती, वो बस नई शक्ल में छप जाती है। कैद खाने में वीना खामोश नहीं बैठी थी। वो अब भी जादुई अल्फाज से जेल की दीवारों में दरारें डाल रही थी। आज़र, जो अब कमजोर हो चुका था, बार बार वीना को रोकने की कोशिश करता, मगर वीना का जुनून बढ़ता जा रहा था। मैं फिर से उठूंगी और इस बार पूरी दुनिया झुकेगी। वो गिरजी। रिया को ख्वाब आने लगे, अंधेरे, चीखें और टूटते जादुई दरवाजे। ख्वाबों का पैगाम। कभी कभी ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते, वो इंतबा होते हैं। रिया को ख्वाब में एक पुरानी परी नजर आई, सफेद बाल, चमकता ताज। बेटी, तुम्हें उनकी वापसी रोकनी होगी। एक राज है जो तुम नहीं जानती। रिया ने सुबह होते ही हैरी को ख्वाब सुनाया। हैरी खामोश हो गया। वो परी हमारी कदीम मुहाफिज थी। अगर उसने तुम्हें बुलाया है तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रिया ने फैसला किया, वो मुझे इस ख्वाब की हकीकत जाननी है। पुरस्रार तहखाना। जवाब हमेशा रोशनी में नहीं, कभी कभी अंधेरे की गहराई में होते हैं। रिया, इला, नूर और फायजा ने स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में एक दरवाज़ा तलाश किया जिस पर सुनहरी ताला लगा था। ये वही जगह थी जो रिया को ख्वाब में दिखाई दी थी। नूर ने जादुई पौधे से चाबी निकाली। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर एक गहराई थी। नीचे जाती सीढ़ियां, दीवारों पर नक्शो निगार और एक आवाज़ जो सरगोशी कर रही थी, सच्चाई अब करीब है। मुहाफिजों का कमरा। जहां खामोशी गूंज बन जाए वहां तारीख बोलने लगती है। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जिसके इर्द गिर्द 7 तख्त थे। उन पर पुरानी मुहाफिज परियों की तस्वीर थीं। एक तख्त खाली था। इसके नीचे लिखा था, आखिरी मुहाफिज रिया। सब चौंक गए। इला बोली, ये तुम हो रिया? तुम्हारी पैदाइश ही मुहाफिज बनने के लिए हुई थी। रिया को अपनी माँ की कुर्बानी याद आई। वो सब समझने लगी थी। माँ का राज। कुछ कुर्बानियां इतनी खामोश होती हैं कि सदियों बाद उनकी गूंज सुनाई देती है। रिया ने आयमा को सब बताया। आयमा की आंखें भर आईं। तुम्हारा मुकद्दर हमेशा बड़ा था रिया। तुम्हारे वालिद और मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुम्हारी ताकत वक्त के साथ जाग उठी। रिया ने माँ का हाथ थामा। उम्मी, अब मैं अकेली नहीं हूं। आपका ख्वाब अब मैं पूरा करूंगी। माँ बेटी एक बार फिर जड़ गईं, मगर अब एक नई रोशनी के साथ। दीवार के पीछे, कभी कभी सब कुछ जानने के बाद भी, एक दरवाज़ा और खिलता। मुहाफिजों के कमरे के पीछे एक और दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा खून से खिलता था, सिर्फ मुहाफिज के खून से। रिया ने अपनी उंगली कटाकर दरवाजे पर छुआ और दरवाज़ा चमक कर खिल गया। अंदर एक कुतुब खाना था, जादुई किताबों से भरा हुआ, और बीच में एक किताब, परियों की आखिरी जंग। ये किताब वीना के मंसूबे का पूरा नक्शा दिखाती थी। धोखा दोबारा। जब दुश्मन जान ले कि तुम जान गए हो, वो एक नया चेहरा इख्तियार कर लेता है। स्कूल में एक नया उस्ताद आया। नाम था ज़ारुक। वो नर्म लहजे में बात करता,
सब बच्चों को पसंद आया, मगर रिया की आंखों में वो अजनबी ना था। ख्वाब में देखी गई साए जैसी आंखें वही थीं। रिया ने खुफिया तरीके से इसकी निगरानी शुरू की और जल्द ही वो जान गई ज़ारुक बीना का नया रूप था, जो जेल से जादुई तब्दीली के जरिए निकल आई थी। नई जंग की शुरुआत जब दुश्मन छप कर वार करे तो मुहाफिज को पहले जागना होता है। रिया ने फौरन इला, नूर और फायजा को बताया, हमें सबको खबरदार करना होगा, लेकिन खामोशी से। हैरी ने कहा, बीना अब कमजोर नहीं, वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुकी है। रिया ने किताब बंद की और कहा, तो हमें भी तैयार होना होगा, पूरी दुनिया के लिए, न सिर्फ स्कूल के लिए। ऐसी ही सनसनीखेज और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। हर ख्वाब यहाँ सच होता है। ज़ारुक का जाल। कभी दुश्मन इतना करीब होता है कि हम सांस लेना भी भूल जाएं। ज़ारुक ने स्कूल के बच्चों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो सबको वादे देता कि उनकी ताकतों को बढ़ाएगा, उन्हें अजीम जादूगर बना देगा। रिया ने कई रातें जाग कर मंसूबे बनाए, अगर हमने ज़ारुक को जल्द रोका ना तो वो स्कूल पर दोबारा कब्जा कर लेगा। इला और नूर ने इसकी मदद करने की कसम खाई, हम तुम्हारे साथ हैं। रिया, एक खुफिया मिशन, कभी जीतने के लिए हारने का ढोंग करना पड़ता है। रिया ने एक तरकीब सोची। उसने ज़ारुक के सामने झूठी फरमाबरदारी जाहिर की ताकि उसके असल इरादे जान सके। ज़ारुक ने इस पर भरोसा कर लिया और अपने खुफिया ठिकाने का पता बताया। ये जगह हमारी असल ताकत का मरकज है, ज़ारुक ने कहा। रिया ने दिल में कहा, अब तुम पकड़े जाओगे। पोशीदा कमजोरी और हर ताकतवर दुश्मन की एक कमजोरी जरूर होती है। रिया ने ज़ारुक के ठिकाने में छपकर एक किताब देखी जिसमें लिखा था कि ज़ारुक का जादू सिर्फ चांदनी रात में ही मुकम्मल होता है। रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो ये है तुम्हारी कमजोरी? रिया ने फौरन इला और नूर को पैगाम भेजा, कल चांदनी रात है, हमें तब हमला करना होगा। चांदनी का इंतजार, कभी दुश्मन को जीतने देना ही असल जीत की चाबी होती है। इस रात स्कूल में एक अजीब खामोशी थी। तलबा सहमे हुए थे और ज़ारुक अपनी जादुई ताकतें बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा था। रिया ने सबको हौसला दिया, याद रखो, हमारी ताकत सच्चाई में है और उसकी ताकत फरेब में। एला ने कहा, चांद ऊपर आते ही इशारा देना, जंग का आगाज। सच की तलवार जब निकलती है तो झूठ लरजने लगता है। चांदनी फैलते ही ज़ारुक ने अपने जादू से पूरी फिजा पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके इर्द गिर्द सिया लहरें नाचने लगें। रिया ने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, मेरी ताकत मोहब्बत से है, डर से नहीं। इसके सुनहरी पर दोबारा निकल आए और उसकी रोशनी ज़ारुक के सिया जादू को काटने लगी। रोशनी और साए की टुकर, जहां रोशनी हो वहां साया हार ही जाता है। ज़ारुक ने पूरी ताकत लगा दी, तुम मुझे हरा नहीं सकती। रिया चीखी, तुम्हारे पास सिर्फ लालच है, मेरे पास उम्मीद है। स्कूल के बच्चे भी रिया के पीछे खड़े हो गए। इन सब की दुआएं और एतिमाद रिया को ताकत दे रहा था। ज़ारुक की स्याही कमजोर होने लगी, इसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। कैद में फिर से इंसाफ का दरवाजा बंद नहीं होता, देर से खिलता। रिया ने ज़ारुक को जादुई जंजीरों में कैद कर लिया और इस बार इस पर ऐसा जादू किया कि वो शक्ल बदल कर फरार न हो सके। इला ने कहा, अब ये दोबारा नहीं आएगा। नूर ने ज़ारुक की जादुई छड़ी तोड़ दी, ये इसका तकब्बुर था, अब खत्म। बच्चों ने खुशी से नारे लगाए, रिया जिंदाबाद। सुकून की एक सांस। सब कुछ थम जाए तो पता चलता है कि हमने कितना खोया और कितना पाया। स्कूल में जिंदगी दोबारा मामूल पर आने लगी। पुराने उस्ताद वापस आ गए, नई क्लासें शुरू हो गईं और कैद खाने को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया गया। रिया ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, शायद मेरा सफ़र यहीं ख़त्म हो। हैरी ने मुस्करा कर कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हारा सफ़र शुरू हुआ है। हैरी की हकीकत, कभी बाप की खामोशी भी एक राज छुपाए होती है। एक रात हैरी ने रिया को करीब बुलाया, तुम्हें एक और सच बताना है। रिया चौंकी, और कौन सा सच अब्बा? हैरी ने कहा, तुम सिर्फ मुहाफिज ही नहीं, तुम्हारी रगों में बादशाहों का खून है। तुम असल में परियों के शाही खानदान की वारिस हो। रिया की आंखें हैरत से फैल गईं। असल वारिस, जो अपनी जुड़ें पहचान ले, वो तूफान से भी ना डरे। रिया ने कहा, मैं बादशाहत नहीं चाहती,
सिर्फ सुकून चाहती हूँ, हैरी ने मुस्कुरा कर कहा। असल बादशाहत यही होती है, जो उसे चाहे नहीं वही इसके काबिल होता है। रिया ने गहरी सांस ली। तो फिर मैं अपनी रियाया की हिफाजत करूंगी, चाहे मेरी किस्मत कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आपको ये दास्तान पसंद आ रही है तो को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जादुई कहानियां अब तक पहुंचती रहें। नया सफर अंजाम वो नहीं होता जहां सब खत्म हो, बल्कि जहां सब नया शुरू होता है। रिया ने स्कूल के बागीचे में बैठकर नई किताबें खोली। इसके साथ अब इला, नूर और बाकी तलबा थे जिन्हें वो जादू सिखा रही थी। अब तुम हमारी उस्ताद हो, नूर ने कहा। रिया मुस्कुराई। नहीं, मैं बस वो हूं जो सच का रास्ता दिखाती है। ख्वाबों का ताज कभी ताज सोने का नहीं, किरदार का होता है। हेडफर ने स्कूल के बड़े हाल में ऐलान किया। रिया, तुम सिर्फ इस स्कूल की नजात दहिंदा नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की मलिका भी हो। रिया ने झककर कहा, मैं सिर्फ अपनी कौम की खिदमत करना चाहती हूं। हाल तालियों से गूंज उठा। रिया का दिल खुशी और आजिज़ी से भर गया। ज़ारुक की आखिरी सांस जब साया रोशनी से भागता है तो अंजाम हमेशा खामोश होता है। ज़ारुक को कैद में एक बूढ़ी जादूगरनी मिलने आई, जिसने कहा, तो ने जो बोया वही काटा। ज़ारुक खामोश बैठा रहा। इसकी आंखों में अब ना गुरूर था, ना चालाकी, सिर्फ पछतावा था। रिया ने दूर से कहा, अब तुम सिर्फ एक सबक हो, बाकी कुछ नहीं। दोस्ती का इनाम वो रिश्ता जो आजमाइश में कायम रहे, सोने से कीमती होता है। नूर, इला और रिया ने साथ मिलकर एक नया क्लास रूम बनाया जहां हर बच्चा अपनी मर्जी का जादू सीख सके। इला ने कहा, यह स्कूल अब सिर्फ ताकत का नहीं, मोहब्बत और खुलूस का घर बनेगा। तलबा ने रंगीन जगमगाती कंदीलें जलाईं और सब ने एक साथ गाया, ख्वाबों का स्कूल, हमारे दिल का नूर। आसमानी खत कभी जवाब आसमान से नहीं, दिल से आते हैं। रिया को एक दिन आसमान से चमकती हुई एक परियों की खत की कासिद मिली। खत में लिखा था, रिया, तुम्हें परियों की काउंसिल में शमूलियत की दावत दी जाती है। रिया ने सोचा, क्या मैं एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़ी हूं? एक और राज, जब सब कुछ खिल जाए तब भी कुछ राज बाकी होते हैं। हेडफर ने रिया को बताया, ज़ारुक तुम्हारा सौतेला चचा था जो तख्त पर कब्जा करना चाहता था। रिया हैरान रह गई, क्या मतलब? तुम्हारी मां की मौत के बाद ज़ारुक ने बादशाही छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें बचा लिया गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो ये जंग सिर्फ स्कूल की नहीं थी, मेरे वजूद की थी। चुनाव का दिन, जब वक्त फैसले का आए तो दिल ही रास्ता दिखाता है। रिया के सामने दो रास्ते थे, एक परियों की काउंसिल का हिस्सा बनकर शाही जिम्मेदारियां लेना, दो स्कूल में उस्ताद बनकर नई नस्ल को जादू सिखाना। रिया ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोली, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूं, क्योंकि नई नस्ल के ख्वाब मेरे ख्वाब हैं। एक नया दस्तूर, जब पुराना निजाम टूटे तभी नया निजाम बनता है। रिया ने स्कूल के उसूल बदल दिए। अब कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से जादू चुनेगा, कोई जबरदस्ती नहीं। उसने एक दस्तूर लिखा, खुलूस, मोहब्बत और सच्चाई के बगैर कोई जादू मुकम्मल नहीं। तलबा खुशी से झूम उठे, यही है हमारा नया स्कूल, जश्न नजात। जब अंधेरा छुट जाए तब चिराग रोशन रहने चाहिए। स्कूल में सालाना जश्न हुआ, जिसमें हर तालिब इल्म ने जादुई खेल, कहानियां और मौसीकी पेश की। रिया ने अपनी तकरीर में कहा, यह स्कूल अब सिर्फ इमारत नहीं, एक खानदान है। नूर और इला ने उसे गिले लगा लिया, हमारी मलिका, हमारी दोस्त। एक ख्वाब, एक कहानी। कहानी वही होती है जो दिल से निकले और रूह को छू जाए। रिया स्कूल की छत पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उम्मी, अब आपको मुझ पर फख्र होगा। हुआ में एक रोशन चमक पैदा हुई, जैसे कोई दुआ कबूल हुई हो। सच्चाई, दोस्ती और कुर्बानी वो जादू हैं जो दुनिया का हर अंधेरा दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दास्तानें आपके दिल तक पहुंचती रहें।